Hello, friends. I hope you guys are doing well. And in this particular session, we will discuss all things about AILET 2025 if you are preparing for the same. So, on this channel, we discuss about Army Institute of Law Mohali, and I have shared so many videos which you guys can go through if you are preparing to go in Army Institute of Law Mohali. So, here in this session, we will discuss all the important things which you guys need to remember if you are preparing for AILET 2025. Also, I will discuss the paper pattern, the syllabus, the sources to study, the uh, seats distribution. All these things will be covered in this session. So here you can see that I was AIR 3 in AILET 2023 exam. Also, I was AIR 21 in Jamia 5-year low entrance exam and AIR 139 in MHCET. Okay, so this is my record. Also, you can see here my scorecard of Army Institute of Law. I scored 168 marks out of 200 and I was AIR 3 under All India General category. So in this session, we will discuss or I will guide you to prepare for AILET and I will discuss with you how many seats do you have, what is the pattern, what is the syllabus, what should be your approach and where to find the specific study content. Also the important thing, how much you need to score. ठीक है, चलिए अब हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट थिंग, द सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, तो आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ इज इन मोहाली in sector 68, and if you belong to army category, it is a very good option for you. Okay, they have in total 100 seats under BLLB honors course. So out of which 75 seats are reserved for Indian Army, Indian Navy and Indian Air Force personnel wards. ठीक है, तो within that, earlier there were 75 seats which were reserved for Indian Army wards, but now the subcategorization has happened in the year 2024, and Indian Army now has 71 seats reserved for their wards. Indian Navy के wards के लिए 1 seat reserved है and Indian Air Force wards के लिए 3 seats reserved है. So this is the pattern now. Then 20 seats are reserved for Punjab resident civil category और Punjab resident civil category का admission 10+2 की percentage की basis पर होता है if they belong of the or if their domicile state is Punjab. ठीक है. Then All India General category has only 5 seats, and there is a tough competition for those guys who are preparing for AILET 2025 under All India General category. Also, unfilled seats of Indian Navy and Indian Air Force category will revert to Indian Army category. This is the notice number 1, which is given under the prospectus, and also if there can be the amendment in these seats if Department of Higher Education under Government of Punjab says. Okay, so this is the pattern as of now. Now let's see what is the exam pattern of AILET. So there you will get 4 sections and आपके पास होंगे 2 hours, and within those 2 hours आपको 200 questions cover करने होंगे, out of which 50 questions will be there from mental ability. mental ability के अंदर आपकी मैथ्स पूछी जाती है, बेसिक मैथ जिसको हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बोलते हैं, और दूसरा आपकी रीजनिंग आती है. देन जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स से 50 क्वेश्चंस आएंगे. जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स में आपकी स्टैटिक जीके होगी और बाकी करंट अफेयर्स होंगे. दूसरा आपका सेक्शन है लो एप्टीट्यूड सेक्शन, जहां पर 50 क्वेश्चंस होंगे एंड देयर विल बी वन लाइनर्स ओनली. ठीक है, कोई भी आपसे पैसेज बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, ना ही 2023 में पूछा गया है एंड ना ही 2024 में पूछा गया है. Then in general English you need guys need to cover RC as well as basic grammar, और यहाँ पर भी 50 क्वेश्चंस आपके पास होंगे. भले ही यहाँ पर कंपटीशन काफी टफ है, बट यस देयर इज अ प्लस पॉइंट एज वेल दैट देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग, एंड द eligibility of the exam is that you must have passed 10+2, that is your 12th grade, and the medium of entrance exam will be English only. So this you need to remember. Also, if two candidates secure identical marks in the final list, then the candidate with the higher marks in the qualifying examination will be preferred. And in case of parity at this stage, the one having the which is older in age shall be given preference.
ठीक है, तो ये आपको चीज़ें ध्यान रखनी है कि जो भी बच्चा, अगर दो बच्चे सेम मार्क्स सिक्योर करते हैं, देन द वन हु गॉट हाई परसेंटेज इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, दैट इज 12th क्लास बोर्ड्स, विल गेट प्रेफरेंस। और अगर यहाँ पर भी पैरिटी देखने को मिलती है, देन द वन हु इज ओल्डर इन एज विल बी प्रेफर्ड। ठीक है, नाउ लेट्स डिस्कस द सिलेबस। सो इन इंग्लिश यू विल गेट क्वेश्चंस फ्रॉम एक्टिव, पैसिव, direct, indirect, antonym, synonym, phrasal verbs, fixed preposition, vocabulary, subject verb agreement, basic grammar, word usage, RP, error detection, word ordering as per dictionary, ये आपको रीजनिंग में भी देखने को मिल सकता है, spelling errors, one word substitution, para jumbles and idioms. So जो भी important topics है मैंने यहाँ पर अच्छे से mention किए हैं, please do make note of them. Try to cover them one by one and revise them one by one. Practice questions as much as you can over under these topics. तो यही एक आपके पास स्ट्रेटेजी है कि आप सभी टॉपिक्स कवर करें, रिवाइज करें एंड देन क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। मैंने आपको यहाँ पे सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, then in the mental ability section, you will get questions from counting figures, average, ratio, proportion, and all these other topics are mentioned over here. Clock, calendar, coding, decoding, cube cutting, tabulation, speed, time, distance, time and work. तो ये सभी टॉपिक्स आपको अच्छे से कवर करने हैं। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, उसके अलावा आपको क्रिटिकल रीजनिंग और डिडक्टिव लॉजिक से टॉपिक्स देखने को मिले हैं 2024 एग्जाम में। 2024 में सिलोगिज्म, स्टेटमेंट अजम्पशन, कॉज एंड इफेक्ट और स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर्ग्यूमेंट से क्वेश्चन पूछे गए हैं। दिस वाज नॉट द सेम इन 2023 एग्जाम, बट यस 2024 एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं एंड देयरफॉर कट ऑफ वाज लो, current affairs were tough. So here you can see that exam is, the competition is increasing year by year and the exam also becoming a little bit tough. ठीक है, देन इन केस ऑफ जनरल नॉलेज आपको स्टैटिक जीके पढ़नी है। स्टैटिक जीके में आपको इंडिया की एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री कवर करनी है। मॉडर्न हिस्ट्री अच्छे से करनी है बिकॉज मैनी क्वेश्चंस वर आस्क्ड फ्रॉम मॉडर्न हिस्ट्री। दूसरा, आपको वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए, आप उसको छोड़कर नहीं जाओगे, आपको वर्ल्ड हिस्ट्री को भी थोड़ा बहुत पढ़कर जाना है। देन ज्योग्राफी एंड पॉलिटी आपको पढ़नी है। ज्योग्राफी में सजेस्ट करूंगी 9th-10th की ज्योग्राफी आपको क्लियर होनी चाहिए अच्छे से, और बेसिक ज्योग्राफी आपको 10th तक की ज्योग्राफी आनी चाहिए। ठीक है, इवन इफ यू बिलोंग टू एनी स्ट्रीम, साइंस, आर्ट्स और एनी अदर स्ट्रीम, कॉमर्स, देन टिल ऑल्सो, इवन इफ यू बिलोंग टू दैट स्ट्रीम, आपको 10th तक की ज्योग्राफी अच्छे से लर्न करनी है और आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए आपके। देन पॉलिटी, पॉलिटी में आपको क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, जनरल नॉलेज के सेक्शन में भी और लो एप्टीट्यूड के सेक्शन में भी। लो एप्टीट्यूड के सेक्शन में विद इन द पॉलिटी दे आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम जुडिशरी, क्वेश्चंस फ्रॉम पार्लियामेंट। ठीक है, and world organizations, as we all know there are so many world organizations which work for different works, and also there are UN bodies, UN organs, United Nations and UN agencies, जो सभी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, उनका फॉर्मेशन ईयर क्या है, उनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये सब चीज़ें आपको कवर करनी है। देन कैपिटल एंड करेंसी में आपको डिफरेंट नेशंस के कैपिटल और करेंसी पता होनी चाहिए, ये बेसिक थिंग्स है। दूसरा, आपको बुक्स एंड ऑथर्स कवर करके जाने हैं। फर्स्ट, आप वो कवर करेंगे जो न्यूज़ में है। सेकंड, आप उसको कवर करेंगे जो इम्पोर्टेंट है, और इवन इफ दे आर historical, but yes they are important for us and they are the suggested source of reading, तो वो आपको पता होनी चाहिए। दूसरा, करंट अफेयर्स, मैं आपको कहूँगी कि आप अच्छे से करंट अफेयर्स करके जाओ बिकॉज 2023 में मोर देन 50% करंट अफेयर्स वॉज देयर इन जीके सेक्शन। 2024 में भी सेम पैटर्न था, इवन 2024 में करंट अफेयर्स वर सो मच हार्ड। ठीक है, करंट अफेयर्स हार्ड पूछे गए थे एंड देयरफॉर जो कट ऑफ है वो भी काफ़ी लो गई थी। तो करंट अफेयर्स पूरा 1 ईयर का अच्छे से करके जाना प्लीज़। आप इसके लिए या तो जीके टुडे रेफर करें या फिर आप कोई पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल से डेली नोट्स बनाएं, डेली उसको रिवाइज करें, स्किप नहीं करिए बिकॉज
अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है, सो दिस इज द मेजर सेक्शन दैट यू नीड टू टेकल। देन उसके अलावा आपको डिफेंस और लीगल बेस्ड करंट अफेयर्स भी पता होने चाहिए, ये आप कवर कर सकते हैं। लीगल के लिए आप लाइव लो पर जा सकते हैं, या फिर आप कोई भी पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल से इसको कवर कर लीजिए। Then sports में से yes, there will be questions from sports category as well. There will be current affairs, especially from Paris Olympics. ठीक है, पेरिस ओलंपिक्स में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और स्पोर्ट्स कैटेगरी में से there was one question in the year 2023, but yes, um, in the year 2025 you will get so many questions under this category. Also national and international news आपको जो आपका फर्स्ट प्रेफरेंस होना चाहिए वो नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज़ को कवर करना है। देन आप बाकी डिफेंस लीगल एंड स्पोर्ट्स की न्यूज़ कवर करें। रीजनल न्यूज़ आप स्किप कर सकते हैं, बट यस देयर विल बी वन लाइनर्स, सो आई विल सजेस्ट कि आप सभी करंट अफेयर्स अच्छे से करके जाएं। ठीक है, इन डिटेल आपको नहीं पढ़ना है बहुत कुछ, जैसे कि आप क्लैट के लिए पढ़ते हो, बट यस आपको वन लाइनर्स अच्छे से पता होने चाहिए। Then in the section of law aptitude, you will get questions from constitutional law. We have four basic laws: tort law, criminal law, contract law and constitutional law. ठीक है, ये आपको अच्छे से कवर करके जाने हैं। इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगी लीगल बुक बाय एपी भारद्वाज। मैं आगे सोर्सेज ऑफ स्टडी बताऊंगी, तब मैं डिस्कस करूंगी वापस से। तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के लिए आपको पढ़कर जाना है फंडामेंटल राइट्स, आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज, आपके डीपीएसपीज एंड हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑल्सो आप जुडिशरी कवर कीजिए। पॉलिटी सेक्शन से मैंने आपको बताया है कि पार्लियामेंट और जुडिशरी से क्वेश्चन पूछे गए हैं लॉ एप्टीट्यूड के सेक्शन में। उसके अलावा आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए टोवर्ड्स क्रिमिनल लॉ और कॉन्ट्रैक्ट लॉ की। एंड अदर देन दैट यू शुड हैव अ नॉलेज अबाउट ह्यूमन राइट कमीशंस और माइनॉरिटी कमीशंस जो इंडिया में एग्जिस्ट करती हैं और सेंट्रल लेवल पर काम करती हैं। और आपको लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स अच्छे से कवर करके जाने हैं। मैं आपको जो सोर्सेज बताऊंगी वहां से आप उसको कवर कर सकते हो। दूसरा, आप ये लीगल बुक बाय एपी भारद्वाज में आपको ये मिल जाएंगे, वहां से भी आप कवर कर सकते हो। And also you should have a basic knowledge about the judges and all. You should have basic knowledge about Supreme Court judges and the judges who were first ones from India. Also, you guys need to remember that there will be one liners only. 2023 may be one liners the, 2024 may be one liners the. There were no passage based questions, so this is the important thing. Then what should be your approach? As I have told you, just read, again revise, and then ask the questions daily to you or to your study partner from whatever you have studied. ठीक है, सो जो भी आपने कुछ पढ़ा है उससे उसके ऊपर बेस्ड या तो आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, या फिर आप अपने स्टडी पार्टनर के साथ बैठकर एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कीजिए एंड अपना जो भी आपने पढ़ाई की है उसको रिवाइज करने की कोशिश कीजिए। देन ऑल्सो ट्राई टू रिवाइज इंग्लिश एंड रीजनिंग रूल्स अ डे बिफोर द एग्जाम। बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, आप इसको ज़रूर रिवाइज करके जाना, और ये आपको एंड टाइम पर एट द टाइम ऑफ एग्जाम बहुत हेल्प करेंगे। देन where to find the specific study content. So first thing I want to tell you that under my mentorship program, I will provide you all the study material, all my handwritten notes, and it would be a paid study material. Also, for that, guys can comment below in the comment section, and I will connect with you through Telegram. Join our Telegram channel to get other study content which is free of cost. ठीक है, तो ये है आपका स्टडी कंटेंट को लेकर। बाकी इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर बाय योरसेल्फ, अगर आप सेल्फ स्टडी करके प्रिपेयर करना चाहते हो, एंड द सजेस्टेड सोर्सेज आर फॉर इंग्लिश, आई विल सजेस्ट बेसिक ग्रामर बुक्स जो आप पढ़ सकते हो। 7th 8th की बुक्स भी, ग्रामर बुक्स से भी आप कवर करोगे, तब भी आप चीज़ें सही कर ले जाओगे। देन यूट्यूब चैनल्स आप फॉलो कर सकते हो। आई विल सजेस्ट CUET Adda 247 एंड आई प्रिपेयर्ड फॉर द सेम। देन मेंटल एबिलिटी के लिए आप RS अग्रवाल बुक रेफर कर सकते हो फॉर प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस। ऑल्सो यू कैन रेफर मालवीय अकेडमी यूट्यूब चैनल। Then for general knowledge, I will say that go through Arihant Static GK or the Lucent book. Lucent is a good book, or you can cover from Arihant as well. Then as I have told you, from geography, you guys need to have a basic knowledge of geography. 10th तक की geography आपको पता होनी चाहिए।
देन 12th लीगल नॉलेज बुक ऑफ एनसीईआरटी, ये मस्ट है जनरल नॉलेज सेक्शन के लिए भी, लो एप्टीट्यूड सेक्शन के लिए भी। तो जनरल जो एनसीईआरटी लीगल नॉलेज बुक है 12th की, वो आपको कवर करनी है। उसके अलावा आप यूट्यूब चैनल्स रेफर कर सकते हो फॉर करंट अफेयर्स, या फिर आप जीके टुडे पर जा सकते हो। डेली अपना पढ़ाई करो, नोट्स बनाओ, रिवाइज करो, ठीक है, करंट अफेयर्स के लिए। बाकी आप स्टैटिक जीके को कवर करने के लिए पहले सपोज आपने अरिहंत या लूसेंट पढ़ ली, देन यू कैन गो थ्रू यूनिवर्सल एमसीक्यू गाइड, जहाँ पे आप क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हो और अपनी प्रैक्टिस को और अच्छा कर सकते हो। देन फ्रॉम लो एप्टीट्यूड सेक्शन I will suggest legal aptitude book by AP Bhardwaj from which I have prepared, और यहाँ पर आपको legal maxims and legal टर्म्स भी मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपको जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, जो भी पढ़ना है वो आपको इस पूरी बुक के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा आपको 12th की लीगल एनसीईआरटी पढ़नी है, ये मस्ट है आपके लिए। साथ ही साथ आपको जो भी करंट लीगल अफेयर्स हैं, ठीक है, जो भी करंट अफेयर्स हैं रिलेटेड टू द लीगल बैकग्राउंड, एंड दोज करंट अफेयर्स you guys need to remember, or you guys need to cover from the YouTube or any other source like live law or bar and the bench. तो ये था आपका all about the specific study content. Now let's see how much you need to score. So if you belong to army category, a safe score would be between 140 to 160 out of 200. But yes, try to score maximum always. जैसा कि मैंने आपको बताया 2024 में there were so many current affairs and the exam was little bit tough. So the person who got all India rank 68 under army category was having 114 marks. So the those students who got marks between 114 to 112 got in AIL, and this was the pattern in 2024. But yes, आपको अपना टारगेट रखना है कि मुझे मैक्सिमम स्कोर करना है। साथ ही साथ आपको 140 से 160 के बीच ही अगर आप स्कोर कर पा रहे हो, then that would be a safe score. And for all India general civil category, the competition is tough for them. They have 5 seats only all over the India. तो अगर आप ऑल इंडिया सिविल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, then you need to score 170 plus, and 170 plus is a good score for you. Even if you are scoring between 165 to 170, that is also a good score, ठीक है। but yes, 2024 एग्जाम was tough, तो आपको 140 से 152 के बीच अगर स्कोर करने वाला बच्चा AIL में गया था, 140 पर AIR 6 था एंड 152 के बीच 152 पर जो AIR 1 था, so those guys got in AIL under All India Civil category. And I have posted the picture of Hariom in my community group. He was one of the student whom I have guided, and he scored 146 marks, and he was AIR 3 in Army Institute of Law Entrance Test 2024. So there, these things you can see. बाकी हम अदर सेशंस यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे, चैनल पर मैं अदर वीडियोस डालूंगी आपके एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। साथ ही साथ आप कनेक्ट हुई टेलीग्राम चैनल से, वहाँ पे आपको सीनियर्स गाइड करेंगे, वहाँ पे आपको फ्री स्टडी मटेरियल मिल सकता है। प्लीज डू connect to our telegram channel, and also if you like these sessions, please press the like button and subscribe to my channel. Thank you so much guys. Bye bye till the next video.